तो ह्यूमन हेल्थ वॉज ऑलवेज अ टॉपिक ऑफ वरी. Always, people always wanted to live healthy, people always wanted to live in a proper life, and people always wanted to enjoy their life. But due to some reason or other, there is some type of problems are there. That is either they may have some genetic disorder, or they may have some malnutritional problem, or they may have some type of infection, or they may have some type of other problem. Nowadays, you see everyone is carrying mask. Why? Why we have to carry mask? What is the panic? You know, the corona, and it has shattered the whole world's routine. You people are studying at home, I am teaching from school, and that electronic teaching method, jo some years back it was just a dream, people had never thought of it. Okay? But now people are thinking, now people are worried. Why? Because health comes first. It is very often said that if you lose money, no problem. If you lose health, it's a big problem. And if you lose character, it's all the more problem. फिर तो कुछ बचा ही नहीं है आपके पास. Anyway, we are not talking about character, we are talking about the health, the second issue. Money we can make anytime, but health is not there. What will do of the money? What will do of money? Because it being healthy means it is increasing our lifespan. It is giving us more opportunity to enjoy the various type of resources which we got. Okay? It is giving us some time to spend with our family and to enjoy. No, it is giving an assurance. So health was always a topic of study. Whether they were scientists or whether they were lay people. Even a person who never been to school, even a person who never studied science, he also know about some of the common practices by which he or she can stay healthy. So what practices should be followed? ठीक है? Health don't simply mean a state of disease free. We are most of the time disease free. If 5 children are sitting here, that means they all are disease free. Anybody having some disease will not sit for study. So, but that doesn't mean that the person who is disease free is always healthy. Health has a broad aspect. Health का तो बहुत बड़ा मायना है. ठीक है? तो हेल्थ को हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं कि मतलब केवल आप डिजीज फ्री. और रेहान, तुम्हारे दो नाम कैसे आ रहे हैं? रेहान खान, यू आर सिटिंग हियर एंड अनदर रेहान खान इज देयर. ओके, तो हेल्थ जो है वो हमेशा से लोगों का वो रहा है टॉपिक. पहले इट वॉज इनिशियली इट वॉज ओनली बिलीव दैट इज टू स्टे फिट, दैट इज द बॉडीज कैपेबिलिटी इज ओनली मेंट टू वर्क द हेल्थ. बट लेटर ऑन सो मेनी न्यू एस्पेक्ट्स हैव बीन एडेड. If I read from here, that is health for a long time was considered as the state of body and mind. It is very commonly we hear a healthy body, a healthy mind. Well, the body is healthy mind. That is healthy mind के अंदर ही healthy body का निवास होता है. अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो you cannot imagine to be a healthy. ठीक है? तो health का शरीर से और बॉडी से दोनों से, मतलब बॉडी से और माइंड से दोनों से रिलेशन है. Now why mind is included there? Mind is included because mind means brain means thinking capacity means thinking means positive thinking as well as negative thinking, that is the worrying. ठीक है? And when we worry our enzymes our hormones जो है वो irregular हो जाते हैं and it lead to the number of other problems. ठीक है? वी कॉमनली नो दैट जो ज़्यादा चिंता करता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड मेनी ऑफ देम इवन एंड देयर लाइफ लाइक सुशांत सिंह. एनीवे, तो ये पहले से लोगों को पता था. ठीक है? एंड that is what early Greek and Hippocrates as well as the Indian Ayurveda system of medicine asserted. तो वो लोग ये मानते थे कि health is a state of body and mind, है ना? Then it was thought that the person with the black bile belonging to hot personality and have fever, जिनको फीवर होता है,
ये इट्स अ मिसकंसेप्शन, ठीक है। मैनी मे हैव सम सॉर्ट ऑफ डिजीजेस से वॉमिट वॉमिट होता था, उनका बाइल ग्रीन कलर का या डार्क ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का निकल, दे यूज्ड टू थिंक दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लैक बाइल. It is not. In fact it is in the reverse order. That is, because of the disease the black bile used to be there, and because of the disease the body temperature used to be high. और उन्होंने उसका उल्टा असर्ट किया. The idea that arrived by pure reflective thought, what they understood, what they observed, and accordingly the idea came. The discovery of the blood circulation, जो किसने किया था? William Harvey. You know the William Harvey, who was the William Harvey was the first who has studied the blood circulatory system in human being. Very interesting story. He was an English scientist. और उसके घर के पिछवाड़े में जो है वो people were punished by hanging. हाँ, और जो people को hang कर देते तो उनकी body को claim करने कोई नहीं आता था. तो body used to remain hung there, hanging there. And this fellow, what he used to do, ये बॉडी उठा लाता था रात में, एंड इन नाइट ही यूज टू विद द हेल्प ऑफ दैट कैंडल और दैट लैम्प ही यूज टू ऑपरेट द डेड बॉडीज को, एंड ही यूज टू स्टडी द ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम, और वापस सिलसिला के कपड़े वपड़े में बांध के वापस वहीं लटकाते थे. ग्रेट साइंटिस्ट. हम जैसे तो वैसे ही डर जाए, बोले अरे यार वहाँ भूत होगा, ठीक है. बट तो विलियम हार्वे वॉज द फर्स्ट पर्सन, एंड ये ड्रॉ द डायग्राम, पूरा उसने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया. ये गिवन द नेम ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स एंड ऑल, ठीक है. तो विलियम हार्वे इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द साइंस इन द ब्लड सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो उसने पहली बार स्टडी करा और उसने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो देखिए कहाँ लिखा है, विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द बॉडीज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द परमिशन विद द ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसप्रूव दैट गुड ह्यूमर. तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लैक बाइल एंड ग्रीन बाइल एंड और कुछ नहीं, बकवास करते तो, ठीक है. और इन लेटर ईयर बायोलॉजिस्ट स्टार्टेड द माइंड इन्फ्लुएंस. बाद में मालूम पड़ा कि माइंड तो कई तरह से इन्फ्लुएंस करता है, एंड नाउ इवन वी नो mind influences our health in many different ways. सबसे importantly because it is the mind which affect the hypothalamus. Hypothalamus affect pituitary, and pituitary affect all the other glands of our body, and वहाँ सब जगह irregulation हो जाता है. So for having a good health, good mind, calm mind, peaceful mind, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुबह सुबह जितने भी आपके गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, आधे मैसेज ओनली पॉजिटिव थिंकिंग पे है. स्टे काम, स्टे स्माइलिंग, है ना, डोंट गेट एंगर एंड दिस एंड दैट. आधे मैसेज तो यही आते हैं. क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑल दीज पॉजिटिविटी इज़ नेसेसरी, बिकॉज इफ़ यू वांट टू कीप योर माइंड calm, and your mind is calm, then the other hormones and other systems will also work. Your heart will work properly, your and glands, the enzymes and hormones and all will secrete in a proper manner and all. So this is now very well understood, ठीक है. तो in the later year biology stated that the mind influences through neural and endocrine system or immune system, and that our immune system maintains our health. Hence mind and the mental state that affect our health. Of course health is affected by, health को यहाँ पे 3 कारणों से बताया. First, genetic disorder. We already studied chapter 5 and 6, and we have studied there are number of diseases which are passing in the family, ठीक है. हमने कई सारी बीमारियों के नाम पढ़े. We have studied sickle cell anemia, hemophilia, phenylketonuria, then we have studied the color blindness, and many other diseases which are there. These are not called diseases, they are called disorders. Disease and disorder is the difference, that in disease are curable. Disorders जो हैं वो जनरली क्योर नहीं होते हैं, उनका इलाज मिलना मुश्किल है, वो आपका सिस्टम को ख़राब कर चुके हैं. तो देखिए डेफिशिएंसी विथ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए बताया, डेफिशिएंसीज विथ विच द चाइल्ड इज बॉर्न एंड द डेफिशिएंसी और डिफेक्ट विथ द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स सिंस बर्थ. तो इफ पेरेंट हैज समथिंग रॉन्ग, इट मे नॉट नेसेसरी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, तो हर एक के पेरेंट्स थोड़ी. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी डिजीज विच वी गॉट डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट इज कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पेरेंट वाज आल्सो सफरिंग. पेरेंट में भी सिंपली कैरियर,
और बोथ द पेरेंट्स में भी हेल्दी, दे मे नॉट हैव इवन कैरियर, बट वो गैमीट बनते समय कहीं म्यूटेशन हो गया होगा, कोई जीन का डिफेक्टिव हो गया होगा, खराब हो गया होगा, टूट गया होगा, मिसप्लेस हो गया होगा, रिप्लेस हो गया होगा, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर दोज, बट नाउ इट विल पास जनरेशन टू जनरेशन. जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर दोज विच आर इनबॉर्न एंड दे आर कैरिड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. दूसरी कौन से दे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस. अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज और आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है डिजीजेस का वो इन्फेक्शियस ही है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज वी कम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन. तो अगेन वहाँ पे भी बात है, अगर आप हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रह सकते तो योर माइंड कैन नॉट बी गुड. यू गो टू सम प्लेसेस एंड यू फाइंड ऑल डर्ट, आपका दिमाग उस टाइम ऐसे ही आउट है तो बोला छी 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 छी, और आप नाक के ऊपर हाथ के ऊपर बंद करके जा, एंड यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग गुड देयर. क्या किसी अच्छा स्टोरी राइटर को हम गंदगी के पास बैठा के उससे कह सकते हैं एक स्टोरी लिखो? कैन बी सकता हो सर? क्या कोई ऐसी जगह पे गंदगी के ढेर के पास बैठ के कहानियाँ लिख सकता है, अच्छी कृति बना सकता है? कितनी दिक्कत होगी उसके दिमाग में आएगा ये क्या है ना? तो जब उसको कहानी लिखनी होती तो वो कहाँ जाता है? वो झील के किनारे बैठता है, झरने के किनारे बैठता है, और माउंटेन पे चल जाता है, पीसफुल काम समुद्र के किनारे बैठ जाएगा कविताएं लिख. तो यू हैव पॉजिटिव फ्लो ऑफ माइंड. ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द नंबर ऑफ पैथोजेंस. द पैथोजेंस विच आर कैरिड बाय एयर एंड वाटर एंड बाय वेक्टर, है ना, बाय act of sex and by blood transfusion and by physical contact and all. So these are the places from where an infected person is passing the disease to the next person. And that is why we all are advised to wear mask and wash our hands very frequently and use what they call sanitizer. सकता हो सर बहुत बड़ी बॉटल लेके आए हैं सैनिटाइजर की, तो ये सैनिटाइजर्स and all. Why we are carrying all this? Because this present virus which we are talking about, the coronavirus, that virus is very strange virus and it is not, and if it enters in the body, gone case, फिर तो lungs का वो बिल्कुल सत्यानाश कर देगा. And that is why, so there are number of diseases which are caused by way of infection. We will study in detail about these type of diseases in this chapter. और जो तीसरा है वो lifestyle diseases. Lifestyle disease कैसी है? देखिए, that include the food, the water that we take, the rest and exercise to our body. There are people who are mad after money and they will work right from the morning till the late night, and even when they are not working physically, they are not working, not sitting on the computer, or you are not sitting on the office table, or not physically doing any activity, but their mind is continuously thinking यार ये करना है और मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा. अरे और जो कंप्यूटर वाले होंगे वो सोचते रहेंगे यार ये सॉफ्टवेयर में कहाँ प्रॉब्लम होगा. दो दे डू नॉट हैव कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ देम, दे डू नॉट हैव द टेबल इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर नॉट ऑफिशियली वर्किंग, बट देयर माइंड इज कंटिन्यूसली देयर. स्ट्रेस. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स. क्या खा रहे हैं आप, क्या खा रहे हैं? इफ़ यू टॉक अबाउट अ चाइल्ड, व्हाट दे लाइक, उसको तो मैगी दे दो, सुबह मैगी, दिन में मैगी, रात में मैगी, कल मैगी, आज मैगी, परसों मैगी. ठीक है, एवरी डे मैगी और फ्राइड फ्रेंच फ्राइज दे दो बस, और फास्ट फूड. अब फास्ट फूड खा खा के अमेरिकन कैसे हो गए इसी. हमारे इंडिया में कॉमनली आपको 2x शर्ट तक मिल जाएगी. ये सिंगल एक्सेल है, डबल एक्सेल और आ जाएगी, इसका शोल्डर थोड़ा इतना बड़ा रहेगा. ट्रिपल एक्सेल यू हैव टू गो टू सर्टन शॉप्स. 4XL, 5XL, 6XL you have to ask for order. You go to any of the big store in any of the normal store in abroad, US में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, देयर यू विल फाइंड ऑन द वन वो स्टैंड रखा है, उस पर वो सारी शर्ट्स लग रही हैं, L से लेके फिर XL, फिर डबल XL, ट्रिपल XL, 4XL, 5XL, 6XL. वेरी कॉमन थे. 6XL वाली शर्ट पहनने वाले बहुत कॉमन घूम रहे हैं वहाँ मोटे मोटे. वाई? बिकॉज दे आर ईटिंग दैट ओनली. पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स,
मोटा मोटा, वेरी हैप्पी, उसमें चीज़ आफ्टर चीज़ एंड बटर आफ्टर बटर एंड वेरी लेस ऑफ वेजिटेबल। एक लेटूस का पत्ता घुसा दिया, बहुत बड़ी बात होगी, या 2 स्लाइस उसमें कुकुम्बर के रख के 1 स्लाइस टमाटो, इज इट एनी वेजिटेबल? हम घर में सब्जी बनाते हैं तो पालक लेकर आते हैं, कम से कम आधा किलो पालक लाएंगे, उसकी डंडी बंटी सारी काटने के बाद में 2 जने हम आधा किलो पालक खा रहे हैं एक बार के अंदर, वो ये लेटस का 2 पत्ता खा रहा है, वो सोच रहा है ये एड वेजिटेबल इनफ। सो इफ यू ईट दिस काइंड ऑफ फूड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नेचुरली यू विल गो ऑन। तो दिस इज द काइंड ऑफ फूड विच वी आर टेकिंग, इट इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट। कंसिडर इट विद आवर सिस्टम। हमारा राजस्थान तो बहुत कम सब्जियां उगाता था, फिर भी वहाँ के थाली के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? आपको दाल मिलती है, आपको दही मिलता है, आप अचार मिलता है, आपको कम से कम एक सब्जी मिलती है, कुछ सैलड मिलता है, और भी कुछ मिलता है ना? एंड देन यू विल गेट सम राइस एंड यू विल गेट चपातीज विद घी। नाउ घी इज फैट, ठीक है? Dals have got protein, the curd has got protein and fat, the vegetables you get all the vitamins and minerals, ठीक है? And the pickle is giving you vitamin C, which is not found anything else, ठीक है? तो you are getting everything what you require in your balanced diet। साउथ में चले जाएंगे हम, इडली डोसा एंड सांभर, या डोसा के साथ सांभर, इडली के साथ सांभर, वड़ा के साथ सांभर, कुछ भी खाओ सांभर तो है, राइस के साथ सांभर। तो सांभर में क्या है? यू आर गेटिंग दाल, यू आर गेटिंग ऑल सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स, प्लस यू गॉट खटाई के फॉर्म में या तो लाइम रहेगा या फिर इमली रहेगी या फिर कुछ और रहेगा। सो यू गॉट ऑल वेजिटेबल्स आर देयर, प्रोटीन्स आर, वेजिटेबल्स विल गिव यू विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स एंड मिनरल्स, है ना? Not hormone, minerals, and then you get dals through which you will get all the protein, then you get what you call जो भी आपने खटाई डाली है उससे आपको विटामिन सी मिल गया, है ना? और फिर इडली जो भी खा रहे हैं या डोसा जो भी आप खा रहे हैं, दैट हैज गॉट राइस एज ए स्टार्च एंड प्रोटीन, दाल एज ए प्रोटीन। सो इट इज़ अ बैलेंस डाइट, लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट, यू डोंट रिक्वायर टू मच ऑफ फैट। तो हमारा डाइट बैलेंस डाइट, उनका डाइट कचरा डाइट, हाँ, दैट इज वाई 6x तक की जरूरत पड़ रही है ना? वह इक्का दुक्का जो पतले होते हैं वो मॉडलिंग में चले जाते हैं और हम पे देख के वो हंसते बोले दे ऑल आर अंडर नरिश्ड। तो दैट इज, तो फूड हैबिट इज वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट इज लीडिंग टू द बैलेंस डाइट। आई जस्ट डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट लिटिल लेटर बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ। एंड इसके अलावा क्या, रेस्ट नहीं है आदमी के पास, ठीक है? रेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। कंपनी वाले जो टारगेट दे देते हैं, ये तो तुम्हें करना ही है, कैसे भी करो, मुझे मतलब नहीं है, टुमारो आई वांट रिजल्ट। और बेचारा भटकता फिरेगा ना, भटक रहा है तो उसका दिमाग भी परेशान, उसका बॉडी भी परेशान। फ़ोन कर रहा है तो उसका बॉडी दुनिया भर के लोगों से सुन रहा है, भाई तुमको ये टाइम मिलता है क्या, 3 बजे फ़ोन करते हो, उठा देते हो उनको, है? तो दैट रेस्ट इज़ नॉट देयर। एक्सरसाइज जीरो, अब तो बिल्कुल जीरो। कोरोना में एक्सरसाइज जीरो, तो घर से भी बाहर नहीं निकला। पहले तो स्कूल में थोड़े बहुत दौड़ लेते थे, चल लेते, दैट इज जीरो पीरियड एंड दैट इंटरवल एंड ऑल। नाउ चिल्ड्रन आर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बेड, मोस्ट ऑफ देम आर स्टडिंग ऑन द बेड ओनली, एंड आइदर नॉट फ्रॉम बेड तो सोफे पे जा करके बैठ गए, फिर वापस जाके बेड पे बैठ गए। बट द डाइट इज सेम। इफ यू आर ईटिंग say for example 3 chapati in each diet, that is morning, afternoon and dinner, तो you are eating 9 chapatis plus in between जो भी खाना है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। now every time you pass through kitchen, डब्बा खोला, 2 बिस्किट खा लिया, थोड़ी देर बाद आए 2 बादाम खटक लिए, फिर थोड़ी देर बाद आए थोड़ा नमकीन खा लिया। so your frequency is increase of intake of diet but exercise is zero, so that is leading to the number of problems. No, exercise is very important. Now, exercise doesn't simply mean the physical exercise. It doesn't simply mean the physical exercise, but it also means the recreation. Recreation means music सुने आप, डांस करें आप, स्विमिंग करें आप, the thing which is giving you a pleasure also. एक तो एक्सरसाइज हो गया कि आपको ऑफिस ने भेज दिया काम करने के लिए, एक एक्सरसाइज हो गई वो लेबर बेचारा यहाँ से लेकर 3rd फ्लोर तक ईंटें लेकर के जा रहा है,
एक एक्सरसाइज हो गई जिसमें उसको मज़ा आ रहा है। मॉर्निंग आई सी नंबर ऑफ पीपल आर साइकिलिंग, वो ईयरफोन भी लगा लिया उन्होंने, या कुछ तो गाने सुनते हुए उन्होंने आगे वो JBL का स्पीकर लगा लिया एंड सबको सुनाते हुए जा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। एंड देन दे आर 2-3 आर देयर एंड यहाँ पे कुछ बांध दिया, वहाँ कुछ लगा लिया एंड ऑल, ठीक है, वॉट एवर, दे आर डूइंग एक्सरसाइज विद अ प्लेजर। इन दिस एक्सरसाइज दे आर एंजॉइंग स्विमिंग और बास्केटबॉल और फुटबॉल, यू आर एंजॉइंग एक्सरसाइज विद एंजॉयमेंट। एंड दैट एक्सरसाइज वेयर यू आर फोर्स्ड टू डू वर्क, वहाँ आप फिजिकली तो कर ही रहे हैं, मेंटली भी यू आर टायर्ड, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज प्लस रिक्रिएशन, नो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि रिक्रिएशन में आप कुछ करें ही करें, यू मे इवन सिंपली सिट एंड थिंक समथिंग पॉजिटिव, कुछ पुरानी चीज़ें ही याद कर लो, हमारा दोस्त था यार, हम कैसे मजे लेते थे, तो यू आर हैविंग सम पॉजिटिव थॉट, यू आर हैविंग सम फ्लो इन यू, ठीक है। आप मन ही मन हंस रहे होंगे, शायद बाहर नहीं हंस रहे होंगे, बाहर आपके मुंह में केवल एक स्माइल सा लग रहा होगा, मम्मी बोल रही होगी अरे बेटा क्यों हंस रहा है बेटा, क्यों, मम्मी एक कोई बात याद आ गई थी, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमको हेल्दी रहने के लिए। 3 थिंग्स विच आर कैटेगराइज हियर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हम पेरेंट्स से लाएंगे और उनका कोई इलाज नहीं है, वेरी डिफिकल्ट टू क्योर है तो सही, दैट विल स्टडी इन द 11th चैप्टर इन 12th चैप्टर, है ना। एंड द सेकंड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो लार्जेस्ट कैटेगरी है विच विल स्टडी, पूरा हमको काफ़ी टाइम लगेगा इन्फेक्शियस डिजीज़ को पढ़ने के लिए। एंड द थर्ड इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल ऑल्सो इंक्लूड दैट वो एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, ठीक है। यू मे नॉट हैव दैट, हो सकता है कि आप नहीं लेते होंगे लेकिन आपका कोई दोस्त लेता होगा, आप उसका साथ देते होंगे, आप बैठ जाते होंगे उसके साथ, तो यह तो पैसिव स्मोकर्स, ठीक है। सम डे इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल कि वो बोले यार जब आप टेंशन में होगा तो वो आपको पकड़ लेगा, बोले यार एक गुट लगा के देख, तेरे को मज़ा आएगा, सारा भूल जाएगा। सो बेटर स्टे अवे फ्रॉम देम, नीदर एक्टिव नॉर पैसिव, जरूरत ही नहीं है। मैं तो 55 साल का हो गया हूँ, मैंने तो कभी कोई टाइप का ड्रग, कोई भी अल्कोहल, तंबाकू, गुजरदा, गुटखा, दारू फारू कुछ भी नहीं लिया है। आई एम लिविंग नो, एंड कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आदमी मुझसे ज़्यादा स्टेमिना से जी रहा है, मैं थोड़ा लटका हुआ सा हूँ, ठीक है। सो इफ़ आई कैन अदर्स कैन ऑल्सो, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आई डोंट हैव वर्क, प्लेंटी ऑफ वर्क आई हैव, ओके। सो व्हाट आई से, लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइफस्टाइल में व्हाट टाइप ऑफ फूड यू आर टेकिंग, व्हाट टाइप ऑफ वाटर यू आर टेकिंग, व्हाट टाइप ऑफ एयर यू आर टेकिंग, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू आर लिविंग, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ क्या कहते हैं एक्सर्शन इज देयर, रिक्रिएशन इज देयर, एंड व्हाट टाइप ऑफ योर हैबिट्स आर देयर, दे ऑल आर इंक्लूडेड। तो ये लाइफस्टाइल हो गई हमारी, ठीक है। हमारा रहना रहने का ढंग क्या है, ठीक है। 1 मिनट है जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द हेल्थ इज द टर्म हेल्थ इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। हाउ डू वी डिफाइन इट? द हेल्थ इज डिफाइंड सिंपली बाय एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई हेल्थ की। अच्छा छोड़िए, हमारे देश में तो और भी बढ़िया डेफिनेशन है हेल्थ की। कोई अच्छा मोटा तगड़ा आदमी हो तो बोलो कितना हेल्दी है यार, अरे मोटा तगड़ा, उसको पूछ, वो 100 रुपये का नोट नीचे गिर जाए तो उठा नहीं सकता उसको, ही कैन नॉट बेंड, ही में आज समवन एल्स, या उठा देना, वो उठा के उसी को देगा या लेके भाग जाएगा, भाग गया तो पकड़ भी नहीं सकता। तो हेल्थ की डेफिनेशन इज नॉट बीइंग फैट, हेल्थ की डेफिनेशन इज नॉट बीइंग डिजीज फ्री, ठीक है। हेल्थ को क्या बताया? और जब फिजिकल फिटनेस, ऐसा भी नहीं है कि जो फिजिकली फिट है, खूब मैस्कुलाइन बॉडी है, 6 पैक आ रहे हैं, मसल यहाँ से यहाँ तक आ रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी, ठीक है। समटाइम प्रोबेबली टू डेवलप ऑल दैट दे आर हैविंग ऑल सॉर्ट ऑफ अदर क्या कहते हैं इंटेक्स विच में इवन इंक्लूड स्टेरॉइड्स, तो दैट इज ऑल द मोर डेंजरस, ठीक है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या है हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कि हम फिजिकली फिट हैं, हम हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट, वॉट एवर वर्क दे आर असाइंड टू, दे मेंट फॉर, दे आर कैरिंग आउट दोज वर्क. Our eyes can see nearby object and the distant object. Our ears can
hear all the type of sound which we are entitled to, that is to 20 to 20,000 hertz, and our tongue can taste and our digestive system can digest and our legs can move and do those exercise. जब हमारे सारे पार्ट बॉडी के ठीक से काम कर रहे होंगे तो हम कहेंगे वी आर फिजिकली फिट. Mentally fit means we are carrying out our responsibility in a proper manner. We are responding to the changes which are taking place around us in a proper manner. अब proper मतलब तो proper ही होता है. Now you must know that what are the limitations. Okay. और जो तीसरा है that is the social, very important. हमने बहुत कॉमनली देखा है हमारे देश के अंदर, हमारे घर का कचरा निकाल के पड़ोसी के घर के सामने फेंकते हुए, अपना कुत्ता घुमा के लेके आएंगे और कुत्ता जहाँ रुक जाएगा आप ऐसे मुंह करके खड़े हो जाएंगे जैसे आपको पता ही नहीं है व्हाट डॉग इज डूइंग. और फट से आप फ़ोन निकाल के हाँ अरे यार वो ये, एंड यू नो दैट द डॉग इज मेकिंग समथिंग देयर स्पॉइलिंग द सोसाइटी. और व्हेन योर बर्थडे इज देयर होम at home, you are putting a tent on the road and making dhamma chowkadi, and you don't care about the people who are sick, the people who are having exams, the people अकेले ही नहीं है, दूसरे जानवर भी होते हैं कईयों के. ठीक है. तो सोशल आस्पेक्ट इज ऑल द मोर वेरी इंपॉर्टेंट विच वन शुड ऑलवेज टेक केयर. ठीक है. और जिनके हमने हमारे देश में क्या देखा है, सोशल वही बिगाड़ते हैं रूल्स जिनके पास ज़्यादा ताकत होती है. और नेता लोग क्या कर रहे हैं, बिहार में मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, देखो द पीपल आर गोइंग इन द क्राउड विदाउट मास्क, एंड दोज दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर. उनका तो दूसरों को भी मना करना चाहिए. बट वट अब वो इलेक्शन जीतेंगे तो रैली निकालेंगे और फिर पटाखे जलाएंगे, शोर मचाएंगे. तो इट इज़ नॉट ओनली द नेता पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल. जिनके पास ज़्यादा पावर वो ज़्यादा सोशली इररेस्पॉन्सिबल है. तो ये तीनों चीज़ें जरूरी है. विल थ्रो लाइट ऑन दिस एस्पेक्ट इन टुमारोज क्लास एंड देन विल कंटिन्यू विद द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस. थैंक यू चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे.